Somebody had his hand up. The two people. I'll ask you first, and then come. Tell us your name and ask the question. Hi, my name is Navid Gupta. Yeah. Here is my question. We say that Brahman is the supreme reality. Is the constant experience of Anahat Nad or the unstruck sound during the waking state an experience of Nirguna Brahman? And the second question is the answer to the question, who am I? It seems to point towards silence. My question is whether the Anahat Nad is the answer to this question, or is it not an answerable question altogether? All right. The Anahat Dhvani, which he referred to, is a mystical experience. Literally, it means the unstruck sound. So sound is always meant by the contact between two things. Just now we heard the clicking of a door, this one. This is a struck sound, ahata. But anahata means that which is unstruck. This is a beautiful concept, and it's actually an experience. It's actually like a sound which you can hear, but it's not a produced sound. It is said to be the eternal background vibration of the universe. Let's put it this way. There's a whole theory of that, of which I do not know much. But it is not the Advaitic Brahman. It points to the Advaitic Brahman. It represents the Advaitic Brahman. Because the Advaitic Brahman is not a particular experience. It's not a particular mystical experience. So suppose you do not experience that anahata. Can you still be enlightened? Yes. Suppose you do experience that anahata dhvani. Are you enlightened? May not be. But it's a very advanced stage in spiritual experience. There was a Swami in our order. I never met him, but I've heard about him, a disciple of the Holy Mother, Swami Shantananda. He used to hear this continuously without a break. And he asked the Holy Mother once, Ma Sharda, that this is my experience. Is it true? And she said, yes, my child, what you are experiencing is right. So it's a very advanced spiritual experience, mystical experience, no doubt. And he used to experience that. He used to hear it. In later life, I've heard from senior monks, he would ask visitors, do you hear something? Yeah. I met one person who hears this. I will not share the name because he's still there. A very interesting person. He's a multi-millionaire. He is very young and he is a very well-known motivational speaker and very deeply interested in. Okay, even if you know him, don't tell the name. Very deeply interested in non-dualism, in Advaita Vedanta. And we had a long talk about this. One of the subjects which came up was this one. And then he told me that he hears this, and he has been hearing it for a long time. That's when he became transformed after this experience. And he's been looking towards trying to meet other people and trying to get explanations of this. Yeah. Let me tell you a little story I just remembered. I mentioned Swami Shantananda, the one who always heard the Anahata, the disciple of Ma Sharda. I've heard this from senior Swamis who have met him actually. He was very childlike, like a little child. And he sort of seemed to inhabit two worlds. I guess that will happen to you if you're continuously hearing the primal sound of the universe. So, for example, there are one or two stories about him which I'll share. How childlike and it's like a radiant little boy, you know. So once he asked one of the sevaks, one of the younger monks who was serving him, why don't I see Swami Virajananda? He said Kali Krishna Maharaj. Swami Virajananda was the guru of Swami Tathagatananda. He was the president of the order. He said, oh, why don't I see him? I haven't seen him for quite some time. And the monk said, but Swami Virajananda passed away 20 years ago. He said, that's why I haven't seen him. In Bengali, Tai Dekchi na. That was one. Another time,
many people would come to meet him. But it would depend whom he would talk to. It's interesting. Maybe he would talk to a little kid. And maybe a very important person comes to meet him, he wouldn't even talk. And it so happened that this man was very rich and powerful and all, and he came. He obviously had some kind of ulterior desire in his mind which he wanted to be fulfilled by the blessings of this Swami. So he came and he did salutations and he started talking in a very disarming way, and the Swami just kept quiet, just sat with his eyes closed. After 15 minutes, this man asked a few questions and kept on asking, Swami, Swami. The Swami didn't open his eyes. And then this fine man finally got disheartened and he bowed down and he walked away. And the others were watching. The moment he walked away, the Swami's eyes flew open. With the cutest smile, he said, "Look how I tricked him. Look how I fooled him." We don't know what was going on there, the subtext there. Maybe that person had some strong worldly desire which he wanted. And he could be the most unworldly person. He had this question, he would ask anybody who's a household person in the world, He was very sympathetic. So he would ask questions like, what do you do? Yes, this is my job. Are you earning enough for your needs? In Bengali, he would say, "Sangsar chole jay to." Is your samsar? Can you take care of your samsar? Are you earning enough for your needs? Is it all right? So one day comes this Chief Justice of the High Court, and with his flunkies running around, and somebody rushed ahead to tell the Swami, "Swami, this person is coming. He's the Chief Justice. It's like a really big person, He's coming to meet you and talk with you." Swami said, "Yes." And when the person came, Swami said, "What do you do?" And somebody else said, "Swami, he's the Chief Justice of the High Court of the state." And the Swami said, "Do you earn enough to take care of your..." He was absolutely unmoved by it. कि तीसरी आंख कब खुलती है, और जब तीसरी आंख खुलती है तो हमें रोशनी दिखाई देती है, और साथ में अनहद नाद या शब्द धुन भी सुनाई देती है। और आज के सत्संग में हम जानेंगे कि वो अनहद नाद या शब्द कहाँ है, कहाँ से आता है, कैसे सुनता है, और उसको सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे सत्संगियों, अगर आप जानना चाहते हैं, सच में जानना चाहते हैं, तो इस महत्वपूर्ण सत्संग को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिए और जानें कि वो शब्द कहाँ से आता है। प्यारी सत्संगत जी, अनहद नाद या शब्द कहीं बाहर नहीं है। अनहद नाद या शब्द हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। महात्मा इसी को सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहकर बयान करते हैं। अब एक और सवाल उठता है कि नाम कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने प्यार में आकर परमात्मा के जितने भी नाम रखे हैं वे सब लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं तथा बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कई सारे देश हैं, एक एक देश की कई कई बोलियां हैं। अब हमारे भारतवर्ष में ही देखो, राउंड फिगर 15,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हर बोली में लोग उस परमात्मा को अनेक नामों से याद करते हैं। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई रब, रहीम, कोई राधा स्वामी नाम से उस परमात्मा को नाम याद रखते हैं। इनमें से हर एक लफ्ज हमारे लिखने या बोलने में आता है, लेकिन जिस सच्चे शब्द अनाहद नाद या नाम की महिमा करते हैं
जिसका महात्मा प्रचार करते हैं वो ना तो आंखों से देखा जा सकता है और ना इन स्थूल कानों से सुना जा सकता है, ना ज़बान से बयान किया जा सकता है। हुजूर महाराज जी उसको अनरिटन लॉ, अनलिखा कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। गुरु अंगद देव जी भी इसी नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखी वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना इउ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै जा मिलना। अखी वाजो वेखना कि उसे हम इन आंखों के बिना देख सकते हैं, मतलब कि ये हमारी स्थूल आंखें उसे नहीं देख सकती। उसे देखने के लिए कोई और आंख चाहिए जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। बिन कन्ना सुनना कि इन कानों से हम उसे सुन नहीं सकते। पैरा वाजों चलना बिन हत्था करना, वहां पे हमारे पैर नहीं जा सकते, वहां पे हमारे हाथ नहीं जा सकते। जीबे बाजो बोलना कि हम उसे अपनी जुबान से बोल नहीं सकते। इउ जीवत मरना, जब हम हर रोज ध्यान में जाकर मरेंगे तब जाके हम उस शब्द को, उस अनाहद नाद को सुन सकते हैं। हम इस सच्चे शब्द या नाम के भेद हासिल करने के लिए गुरुमुखों की सोहबत करते हैं, संतों महात्माओं की संगति करते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं इनकी मियाद या अवधि है, इनका कोई ना कोई वक्त मुकर्रर किया जा सकता है। कोई लफ्ज 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई हजारों साल पुराना है। उस परमात्मा के हम हजारों अनेकों नाम रख चुके हैं। हम पिछले नामों को भूल जाते हैं, अपने अपने प्यार में नए नाम रखते जाते हैं। जिस तरह से माँ अपने बच्चे के कई सौ नाम रखती जाती है, पुराने भूलती जाती है और नए नए रखती जाती है, उसी तरह से हजारों अनेकों महात्मा आए हैं और हजारों अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्जों से उस परम आत्मा को याद करेंगे। लेकिन जिस नाम की महिमा स्वामी जी महाराज या अन्य संत कहते हैं, सबसे पहले वो नाम था। सबको उस नाम ने पैदा किया। बाइबल में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा है। शब्द ने ही सारी सृष्टि की रचना की। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब किछ होया, कि जो भी दुनिया की रचना आंखों से दिखाई दे रही है, इसको परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं, शब्दै धरती शब्दै आकाश, शब्दै शब्द हुआ प्रगास। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटै घटी आछे। उस शब्द ने हमारी धरती, हमारे सूर्य, चंद्रमा आदि की रचना की है। ये सब दिखाई देने वाली वस्तुएं जो भी आप अपने आसपास देखते हो, उस अनहद नाद या शब्द ने ही पैदा की हैं। वह शब्द हम सबके अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। अब भी आपके अंदर धुनकारें दे रहा है जब आप सत्संग सुन रहे हो। ये बोले या लिखे जाने वाला शब्द
हमारे साधन या जरिया हैं, वह शब्द हमारा मकसद या लक्ष्य है। कौन सा शब्द? अनाहद नाद शब्द। इन शब्दों के जरिए हमें वापस जाकर अपने ख्याल को धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ना है, जिसको अनाहत नाद कहा जाता है। ना ही हमारा कोई मुल्क है। जो इंसान अनाहत नाद या शब्द धुन को अपने कानों में सुनता है, वो ना तो हिंदू होता है, ना तो मुसलमान होता है, ना तो वो राधा स्वामी होता है, ना कोई और इंसान होता है। वो सिर्फ एक इंसान होता है जो शब्द को सुनता है। संत महात्मा हमें इन वहमों, भ्रमों और झगड़ों में से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम दुनिया के जीव क्या करते हैं? इन चक्करों में से नहीं निकलते, बार बार इन झगड़ों में फंसते हैं। मैंने कई दफा देखा है, एक बार दो सत्संगी जो अपने आप को समझते थे मेरे घर पे आए। एक कहने लगा कि भाई बाबा जी ने ऐसा कहा, दूसरा कहने लगा कि नहीं नहीं बाबा जी ने ऐसा कहा। तो दोनों आपस में बहस करने लगे और लड़ने लगे, और यहाँ तक बात आ गई कि भाई मरने मारने पर बात आ गई। तो ये है हमारा सत्संगी जो अपना इस थोथा ज्ञान, अपने इस सूचनाओं को लेकर एक दूसरे से लड़ता है। अगर वो सच में ज्ञानी होते तब वो तो या तो बात नहीं करते। एक बार क्या हुआ, संत कबीर और बाबा शेख फरीद दोनों मिले। बाबा शेख फरीद जी संत कबीर के घर में आए। तो जैसे ही बाबा शेख फरीद जी का आगमन हुआ तो संत कबीर जी ने उनका स्वागत किया और उनको अपने घर में ठहराया। तो वो 3-4 दिन चुप रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उनके शिष्य जो थे वो यही इंतजार करते रहे कि दोनों कुछ ब्रह्म की चर्चा करेंगे, उस परमात्मा की चर्चा करेंगे, पर चर्चा तो कोई हुई नहीं। तो हुआ क्या, जब 2-3 दिन शेख फरीद जी रहे तो वो चले गए। तब संत कबीर के शिष्यों ने उनसे पूछा कि हम तो बड़े ही उत्सुक थे आपसे और उनसे कि कुछ ब्रह्म चर्चा होती, कुछ बहस होती तो हम कुछ जानते। तो संत कबीर ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, अगर मैं यहाँ पे मैदान में अपने घर में यहाँ पे एक पानी का गिलास रख दूं, तो जो पानी का गिलास मुझे दिख रहा है वो क्या आपको भी दिख रहा है? तो दोनों ने कहा, उन्होंने शिष्यों ने, कि हाँ भाई हमें भी वो गिलास दिखेगा। तो संत कबीर ने कहा कि बस उस गिलास को, जो उस परमात्मा है, उसको मैंने भी देखा, उसको फरीद ने भी देखा, तो इस पर बात क्या करनी है? जिस इंसान ने गिलास को देख लिया, मान लीजिए मैंने भी देखा, आपने भी देखा पानी से भरा गिलास, तो क्या हम आपस में वाद विवाद करेंगे? कतई नहीं हो सकता। और अगर आपने बादल देखा है, बादल नीले हैं, मैंने भी देखा है बादल नीले हैं, तो क्या हमारा झगड़ा हो सकता है? कभी नहीं। और अगर मैं कहूं द सन राइज इन द ईस्ट, और अगर आप कहें कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो मेरे में और आप में कौन गलत है और कौन सही? कोई भी नहीं। तो इसी तरह से झगड़ा सिर्फ दो मूर्खों में होता है, दो विद्वानों में, ज्ञानी पुरुषों में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता। और जो झगड़ते हैं वो ज्ञानी होते नहीं। ज्ञानी पुरुष हमेशा चुप रहने में ज्यादा अपने आप को अच्छा अनुभव करते हैं। हम महात्माओं की तालीम से फायदा उठाकर उस नाम की कमाई, अनहद नाद को सुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम झगड़ते रहते हैं। और जो वो अनाहत नाद है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं,
शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत वेगार दुख पाए। जो लोग उस शब्द को देह या शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे जो बेगारी होते हैं उनकी तरह अपना वक्त जाया करने में लगे हुए हैं। तो अभी हम जाने कि बेगारी कौन होता है। बेगारी वो होता है जो दिन भर काम करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस घर आ जाता है। कुछ लोग उस कोल्हू के बैल की तरह होते हैं जो सारा दिन घूमता है पर पहुंचता कहीं नहीं। हम सब इस दुनिया के जीव उस कोल्हू के बैल की तरह हैं, मेहनत भी करते हैं, वक्त भी बर्बाद करते हैं, मगर हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से महात्मा जी हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि शब्द हमारे शरीर या देह के अंदर है। अब सवाल उठता है कि अगर शब्द अनाहत नाद हमारे शरीर के अंदर है तो कहाँ है? हमारी जो शरीर है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आंखों से नीचे और दूसरा आंखों के ऊपर। हमारे सोचने का केंद्र आंखों के पीछे है। आप देखें, अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना हो तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर हमारे माथे पर चला जाता है। कभी भूली हुई बात को याद करने के लिए आप टांगों या पैरों पर हाथ नहीं मारते या पेट पर हाथ नहीं मारते। आंखों के बीच के स्थान पर हमारे सोचने के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारा ख्याल आंखों से उतरकर, दोनों आंखों के बीच में से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। अब 9 द्वारे कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं, मल मूत्र आदि। इस जगह बैठे हमारी आंखों के बीच में कभी हमें बच्चों का ख्याल आता है, कभी हमें ऑफिस का, दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है, तो कभी हम अगर सिलाई कढ़ाई करते हो तो कभी उसका ख्याल आता है। और इस सबको महात्मा सिमरन कहते हैं। आज ही मुझे एक स्त्री का फोन आया, तो जब वो अपना सवाल पूछ रही थी तो उसका ध्यान बड़ा ही कम था मेरी बातों पर। तो वो एक बुटीक चलाती हैं जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं। तो जब मैं उनसे कह रहा था कुछ बात, पर उनका ध्यान कहाँ था, उनका ध्यान अपनी दुकान पर ही था। तो जो ये ध्यान हमारा इधर उधर जाता रहता है, इसको महात्मा जी सिमरन करना कहते हैं। जिसके बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसी को जो संत महात्मा हैं ध्यान करना कहते हैं। ये जितनी भी दुनिया की चीजें हैं जिनका हम रोज सिमरन और ध्यान कर रहे हैं, ये सब नाश है। उनका प्यार हमें उन्हीं का बनाए बैठा है। उनके प्यार के कारण हम इस दुखों में, इस बार बार जन्म लेने और मरने के दुखों में फंसे रहते हैं। महात्मा जी समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापिस समेटकर आंखों के पीछे खड़ा करना है। जब हमारा ख्याल इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वो मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज, अनाहत नाद की आवाज जो मालिक की दरगाह से आती है, हम सबके अंदर सुनाई दे रही है। वहां कोई धर्म का सवाल नहीं है, ना तो किसी देश का सवाल है। आप लोग हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं,
उसी एक रास्ते से अंदर जाना है। अपने ख्याल को उसी अनाहत नाद या शब्द के साथ जोड़ना है। अपनी सुरत अथवा आत्मा को 9 द्वारों में से निकालकर उस अनाहत नाद, शब्द या नाम के साथ जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचना है। गुरु अमरदास जी प्यार के साथ उपदेश करते हैं कि 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। अनहद शब्द। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है, हम मुक्ति हासिल नहीं कर सकते हैं। संत सिर्फ उसे लेने आएंगे जो जीते जी मरेंगे, जीते जी मुक्ति हासिल करेंगे। तभी जब वो इस शरीर में मरेंगे, इस शरीर के असली 70-80 साल या जितने भी साल दिए गए हैं भगवान ने, उसके बाद मरेंगे, उसी वक्त सदगुरु लेने आता है, उसके अलावा कभी नहीं। सो इस भूल में ना पड़े रहें कि हमने नाम ले लिया, दीक्षा ले ली किसी भी गुरु से तो हम मुक्त हो गए। ये सब तुम्हारे अपने मन की चालबाजियां हैं। जीते जी हम मुक्ति किस प्रकार हासिल करेंगे? जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली पार कर जाएंगे, उसकी निशानी क्या है? आप जी अमरदास जी समझाते हैं, अनहद शब्द बजावणिया, कि वहां दिन रात अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जब तक हम ख्याल को उस बिंदु या केंद्र पर तीसरे तिल पर इकट्ठा नहीं करते जहां दाता दात दे रहा है, हम उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? वो अमृत दिन रात आंखों के पीछे बरस रहा है, मगर हमारा ख्याल आंखों से नीचे उतरकर कभी काम की लहरों में फंस जाता है, कभी क्रोध की लहरों में फंस जाता है, कभी मुकदमों में, कभी कौमों में, मुल्कों में, झगड़ों में, बाल बच्चों में फंस जाता है। कोई इंसान कामी है तो कोई क्रोधी है, तो वो इंसान क्या करता है? काम और क्रोध को कोसने लगता है। पर उस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि भाई ये सब ऊर्जाएं हैं, ये सब ताकतें हैं, शक्तियां हैं। जिस तरह से बिजली एक है पर उसके यंत्र बिजली से चलने वाले अलग अलग हैं। वॉशिंग मशीन देखिए अलग है, पंखा अलग है, बल्ब अलग है, मोबाइल फोन अलग है। बिजली एक ही है पर काम उसके अनेक हैं। उसी तरह से शक्ति या ताकत हमारे शरीर में एक है, पर वो ताकत अगर क्रोध में लग गई तो वो ताकत भी तो हमारी ही है। अगर वो काम में लग गई तो वो ताकत भी तो हमारी ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस ताकत को अगर वापिस से खींचना शुरू कर दें, जिस तरह से हम कमरे में किसी पंखे को बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें या पंखा बंद कर दें, कैसे करते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ किया, बिजली का कनेक्शन कटा, पंखा या लाइट ऑफ। उसी तरह से अगर आपने अपनी इन वासनाओं से कनेक्शन काटना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से अगर आपने इन वासनाओं से कनेक्शन काटना है, तो आप क्या करोगे? आपने ध्यान के जरिए अपने ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के बीच में रखना है। जब तक हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, तब तक हमारे ये वासनाओं का कनेक्शन कट नहीं होता। और जब तक ये कनेक्शन कट नहीं होता, हमारा ख्याल ऊपर की तरफ नहीं जाता, हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं जाती, तब तक वो अनाहत नाद सुनना शुरू नहीं होता।
थोड़ा थोड़ा सा भी अगर कनेक्शन कटना शुरू हो जाए इन वासनाओं से, तो उसी वक्त तुरंत नाद शुरू हो जाता है। शुरू में थोड़ा सा भी अगर कनेक्शन कटा, आपकी ऊर्जा, काम ऊर्जा, क्रोध ऊर्जा, तरह तरह की ऊर्जा तब्दील हुई नाम ऊर्जा में, उसी वक्त अनहत नाद और धुन शुरू होती है। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम अगर गुरुमुखों की संगति में रहेंगे, संतों महात्माओं की संगति करेंगे, तो वे हमें बताएंगे कि अनाहत नाद या शब्द कहाँ है, किस रास्ते पर चलकर हमें अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है, किस तरह अपने ख्याल को इन विषय विकारों, दुनिया के काम धंधों में से निकालकर वापिस आंखों के पीछे लाना है। जो दौलत हमारे अंदर है और परमात्मा ने हमारे लिए रखी है, वो हमारी ही है, लेकिन जब तक हम अंदर जाकर उस दौलत को अपना नहीं लेते, हम उस दौलत से कभी कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये जो आत्मा है, जो असली में हमारा स्वरूप है, क्या उसका स्ट्रक्चर साउंड, बिकॉज जितना भी अभी तक मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है, जो भी थ्योरी स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आकाश, उसको अगर हिंदी में उसमें वो यूज करते हैं आकाश, वैक्यूम, इनविजिबल, मतलब सब हो गया आपका, ये सब शब्द यूज किए जाते हैं। तो ये साउंड है कि क्या, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या? दैट्स माय क्वेश्चन। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसको कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता है, और टेक्निकली इसको साउंड भी नहीं कहा जा सकता है। यू कैन नॉट कॉल इट अ साउंड, ऑल्दो वी आर कॉलिंग इट अ साउंड, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग। जैसे अगर मैं कुछ बोलने लग जाऊं यहां पर, मैं आपको कहता हूं भाई ची चौ पाओ, ऐसे करके मैं एक आवाज निकालता हूं और आपसे पूछता हूं कि कौन सी लैंग्वेज है ये, तो क्या जवाब दोगे आप? चाइनीज लग रही है, राइट? सबके माइंड में ये आ रहा है कि चाइनीज भाषा है, जबकि मुझे चाइनीज नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है। चाइनीज तो नहीं आती ना यहां पे किसी को, बट क्योंकि उससे मिलता जुलता है इसलिए हम कह रहे हैं कि चाइनीज है। समझ गए ना? तो सिमिलर में और सेम में फर्क को समझ लो अच्छे से। इट इज सिमिलर टू साउंड बट इट इज नॉट साउंड। इसीलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर प्रैक्टिकली आप मुझसे कुछ भी बोलने को कहो और आप ये कहोगे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, एग्जैक्ट बताओगे ये क्या है, तो मैं चुप हो जाऊंगा। इसीलिए आप देखोगे कहीं पर भी किसी भी स्क्रिप्चर में इसके बारे में सीधी बात नहीं करी गई है। इसको ओम कह के छोड़ दिया गया है। इसको बोल दिया गया है कि ये सुप्रीम रियलिटी है, ये ब्रह्मन है। वहां पर जाकर के सब लोग चुप हो जाते हैं। जो भी पास में रियलाइज मास्टर्स हुए हैं उनसे जैसे ही लोगों ने पूछा कि भाई सुप्रीम रियलिटी क्या है, वो चुप हो गए, साइलेंट हो गए। इंप्लाइड क्या है उसका मतलब खुद समझो। आप भी उनके जैसे शांत हो जाओ और उसके बाद में जो रह जाएगा वो रियलिटी है, जिसको हमारा माइंड क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर साइंटिफिक एंगल से इसको आप देखोगे तो यू कैन कॉल इट एज दी 0 पॉइंट फील्ड। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में एक 0 पॉइंट फील्ड की बात करी गई है जिसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, बट वो सिर्फ एक थ्योरी है। मान लो साइंस किसी तरह से यहां तक पहुंच भी गई, तब भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज तब भी एक गैप बना ही रहेगा। जो साइंटिस्ट हैं वो इसको अपने से अलग ही समझेंगे, जैसे आप समझ रहे हो। तो हमारे जो वेद हैं, वेदांत है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, कि ये आप ही हो। जो साइंटिस्ट अगर यहां तक पहुंच भी गए, मान लो कभी फ्यूचर में किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस जगह तक पहुंच गए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिससे उस इंस्ट्रूमेंट ने इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि हां ये है, तो क्या गलती करेंगे? वही गलती जो अभी आप लोग कर रहे हो, कि क्या बोलोगे, हां ठीक है ये है, क्या है पता नहीं, इसके बारे में कुछ भी सोचते रहो, बट एक बात तो पक्की है कि ये मैं नहीं हूं। समझ गए ना? मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, इसके बारे में आदमी सोचेगा कि मुझे इसका क्या फायदा है, वो फिर फंस गया। समझ गए ना? तो साइंस कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक स्पिरिचुअलिटी पहुंच गई। अब वो क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूं,
बहुत जब आप बारीकी से इस पूरे को समझोगे, सबसे पहले उन सब चीजों को छोड़ते चले जाओगे जो आप नहीं हो, तो एंड में जो बच जाता है वो आप हो। जिसको छोड़ दिया इसका मतलब देखा जाए तो कुछ देर के लिए वो मर गया। तो जो मर गया, जैसे ही उससे आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को छोड़ देते हो, तो जो नहीं मरता वो एंड में बचा रह जाता है। फिर आप कहते हो कि हां ये तो है जो नहीं मर रहा, बाकी सब कुछ मर रहा है, लेकिन मैं इसको भी जानता हूं और इसको भी जानता हूं। तो अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है कि मैं कौन हूं? क्या मैं कोई तीसरा हूं या इन्हीं दोनों में से एक हूं? क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जब इस तरह की डीपली आप इंक्वायरी करोगे तो कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी सी भी समझ है उसको देर नहीं लगेगी ये समझने में कि मैं वो नहीं हूं जो मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बाल जाकर के किसी नाई से कटवा लेते हो तो आप वो नहीं हो। अभी आप बोल रहे हो कि हां मैं ये हूं, जिसमें बाल भी एक हिस्सा है, बट वो बाल कट गए तो मैं वो नहीं हूं। क्लियर है ना? तो अंदर तक हमको ये सारी बात समझ आती है कि जो चला जाता है उसके बाद भी हम बने रहते हैं, तो वो तो हम नहीं हो सकते। यही दो चीजें हैं इस दुनिया में, तीसरी कोई चीज नहीं है। तीसरी सिर्फ एक इल्यूजन है। ठीक है ना? या तो आप अपने को ये मानते हो जो आता है और जाता है, यानी कि टेम्पररी, या आप इस टेम्पररी पे इंक्वायरी कर करके अपने थॉट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करके समझ करके आप यहां तक पहुंच जाते हो कि मैं ये कुछ भी नहीं हो सकता जो आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि वो सब मर गया लेकिन मैं सरवाइव कर गया, तो मैं क्या हूं? फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्क्रिप्चर्स को स्टडी करके आप इस कंक्लूजन तक पहुंचते हो कि मैं नहीं मरने वाला। ठीक है ना? और नहीं मरने वाला सिर्फ यही है जो है। एक है आप उसके बारे में सोचते रहो, एक है कुछ है, एक है आप सोच रहे हो कि नहीं मैं टेम्पररी भी नहीं हूं, मैं परमानेंट भी नहीं हूं, मैं कुछ और ही हूं। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको फिट होना है। अब ये पूरी की पूरी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसको विवेक बोलते हैं। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन। आपको समझना है कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है, क्या बदलता रहता है क्या नहीं बदलता है, क्या मरता है और क्या नहीं मरता है। सुना है ना सबने ये बातें कि भाई आत्मा नहीं मरती, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता। अब ये सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा ना ग्राफ है मेरे हाथ में, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है वेवलेंथ कम होती चली जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हाई हो जाएगी तो क्या होगा, यही बात क्वांटम फिजिक्स बोलती है। जब वेव को आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उसके बीच का गैप कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे वो स्ट्रेट लाइन बनी वो इनफाइनाइट हो गई। जैसे ही उसके बीच का हमने गैप खत्म कर दिया तो कहां है फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी वो जो हर जगह है। क्लियर हो गया? तो अब इसमें मजेदार चीज क्या है कि हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है इंसानों की, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बीच की साउंड्स को हम सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और जानवर हैं जो उससे नीचे की साउंड को भी सुन सकते हैं और उससे ऊपर की साउंड को भी सुन सकते हैं। जो नीचे की साउंड है उनको बोलते हैं इंफ्रा साउंड, और जो ऊपर की साउंड है, हायर पिच साउंड है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वो कैसी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो जब सॉलिड से कोई सॉलिड टकराएगा तो आवाज लो फ्रीक्वेंसी की होगी, थोड़ी मोटी होगी, भारी होगी। जब पानी से पानी टकराएगा तो कैसी आवाज होगी, हल्की हो जाएगी। तो ब्लड अगर जो सर्कुलेट होता है, ब्लड को आप सर्कुलेट करो कहीं पर भी तो उसकी आवाज कैसी होगी, पानी जब सर्कुलेट होगा उसकी आवाज कैसी होगी, वो पता नहीं है क्या हमें। तो क्या ये ब्लड की सर्कुलेशन की आवाज है? ब्लड की सर्कुलेशन की आवाज किस पिच पे होगी, मिडिल में आएगी। तो साउंड ऑफ साइलेंस कहां पर है,
क्या ये लोअर फ्रीक्वेंसी है या हायर फ्रीक्वेंसी है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? खत्म बात। अब ये कोई बिलीफ है या ये फैक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है? फैक्ट है। कैसे? साइंटिफिकली देखो, धीरे धीरे इन फ्रीक्वेंसीज की आप साउंड को सुन सकते हो यूट्यूब पे जाकर के। देखो 100 हर्ट्ज की आवाज कैसी होती है, सुन के देखो, आपको पता लगेगा वो भारी होती है। फिर 500 हर्ट्ज की सुनो, फिर 1000 हर्ट्ज की सुनो, फिर 5000 की सुनो, 10,000 की सुनो। तो अब उस आवाज को बंद करके अपने अंदर सुनो कि अगर आवाज ऐसे पतली होती है तो ये जो आवाज मुझे अंदर से आ रही है, साउंड ऑफ साइलेंस, ये उससे पतली है या उससे मोटी है? आप फिगर आउट कर सकते हो ना? तो अगर आप थोड़ा सा भी आराम से फिगर आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये 20,000 नहीं है, उससे भी बहुत ऊपर है। टिनाइटस क्या है और साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यू नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। टिनाइटस में क्या होता है, अंदर कुछ आवाजें आती है। साउंड ऑफ साइलेंस में क्या है, अंदर एक आवाज आ रही है। तो देखने में सरफेस लेवल पे दोनों बहुत सिमिलर सा लगेगा, बट जब डेप्थ में आप जाओगे, टिनाइटस जिन पेशेंट्स को हुआ है उस कॉज को आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये एक प्रॉब्लम है जो कानों से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड है। लाखों लोगों पे रिसर्च हुई है जिसके बाद कुछ कंक्लूजन्स निकले हैं कि टिनाइटस इज नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ अंडरलाइंग कॉजेस। मतलब जो टिनाइटस पेशेंट्स हैं उनके अंदर कुछ एक पैटर्न को देखा गया है। वो पैटर्न क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज इज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अदर कॉजेज इंक्लूड ईयर इंफेक्शंस, डिजीज ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्रेन ट्यूमर्स, इमोशनल स्ट्रेस, एक्सपोजर टू सर्टेन मेडिकेशंस, अ प्रीवियस हेड इंजरी एंड ईयर वैक्स। ये कॉजेज है। पर सबसे बड़ा कॉज जो बोला गया है इसके अंदर वो है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जिसको डिफाइन किया गया है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस विच इज कॉल्ड NIHL is hearing impairment resulting from exposure to high decibel sound, noises that is concerts, sporting events, daily activities, personal listening devices to cause NIHL. एक और चीज, एक पैटर्न क्या देखा गया है, द पीक एज रेंज ऑफ पेशेंट्स विथ टिनाइटस इज 40 to 70 years, 40 से 70 साल. Only 1% of those younger than 45 years of age experience tinnitus. About 12% of adults aged between 60 to 69 years develop it, and patients in their 70s have a 25% to 30% risk of tinnitus. फर्क समझ रहे हो? सिंपल वे में बोलूं, जो भी मैंने इसमें अभी पढ़ा है वो ये है, टिनाइटस जो एक बीमारी है वो होती है अगर आप अपने कान को एक्सपोज करोगे, यानी कि डिस्कोथेक में आप एक डीजे हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपको टिनाइटस होने के. आप ईयरफोन लगाए हुए हो दिन में मान लो 8-8 घंटे और तेज म्यूजिक सुन रहे हो, तो चांसेस हैं आपको टिनाइटस हो जाएगा. तो ये बीमारी किससे रिलेटेड है? कानों से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है. और दूसरा पैटर्न क्या निकल करके आ रहा है, जिसकी एज जितनी ज्यादा है उसको टिनाइटस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है. साउंड ऑफ साइलेंस में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. आपकी एज जितनी ज्यादा है उतना ही साउंड ऑफ साइलेंस आने के चांसेस कम है, टिनाइटस होने के चांसेस ज्यादा है. एज जितनी कम है उतना ही साउंड ऑफ साइलेंस ऐसे आएगी, समझ गए ना, और टिनाइटस होने के चांसेस 0% है. तो छोटा सा बच्चा डिस्कोथेक में क्या करेगा? सपोजिंगली आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो 20 साल तक जहां पर साउंड बहुत ज्यादा है, तो आपको टिनाइटस होने के चांसेस है. इन सिंपल वर्ड्स, दूसरा इसमें रीजन बताया गया है स्ट्रेस. यूएस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है टिनाइटस की, इंडिया में कम है. वहां पर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. तो जिस आदमी को जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उसको टिनाइटस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है. ये जो साउंड्स होती है डिस्टर्बिंग होती है, यानी कि ये साउंड्स होंगी घर टाइप की आवाज, ये ऐसी आवाज होगी. जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो ऐसी. साउंड ऑफ साइलेंस इज पीसफुल, ये आपके मन को और शांत करेगी, ये आपको डिस्टर्ब करेगी. जितना आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होगा उतना ही आपको साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने में ज्यादा टाइम लगेगा. जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी जल्दी और उतनी आसानी से आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सकते हो. टिनाइटस है तो उसका इलाज है, कई तरह के इलाज बताए गए. कान का वैक्स निकाल लो,
ऐसी जगहों पे जाना बंद कर दो जहां पर के नॉइज बहुत ज्यादा है, आपका इवेंट मैनेजमेंट का काम है और वहां पर शोर में आप रहते हो, तो शोर को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दो तो आपका टेनाइटस ठीक हो जाएगा। साउंड ऑफ साइलेंस में क्या है, बिल्कुल उल्टा है। आप दिल्ली में हो, मान लो आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा हो गया, आपको आज ये साउंड ऑफ साइलेंस आ रही है, आने वाले टाइम में बंद हो गई आनी, ये बंद भी हो जाती है। क्यों बंद होएगी, आपका ध्यान कहीं और लग गया, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया, तो अब आपका ध्यान यहां से हट गया, आपका ध्यान कहीं और चला गया। अब आपको क्या करना है, शहर को छोड़ करके एक पीसफुल जगह पे चले जाओ कुछ दिन के लिए, पहाड़ों पे चले जाओ। इसीलिए पहले के जो ऋषि मुनि थे वो पहाड़ों पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है ना, जहां पर कोई मोबाइल की वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए कहीं मोबाइल की कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, तो हजारों साल पहले कहां से आई, समझ गए ना। अनंतनाथ जिसकी बात करी गई है, ओम जिसकी बात करी गई है, वो हजारों साल पहले कहां से आया, मोबाइल तो थे ही नहीं। तो आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, जहां पर चूं की भी आवाज नहीं होती है, वहां आप जाओगे आपको फिर से साउंड आने लग जाएगी, अगर अभी बंद हो जाए तो किसी वजह से यहां पर, ठीक है। तो शोर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बीमारियों की वजह से टिनाइटस होता है, और आप जितने हेल्दी होते हो उतना ही ये साउंड ऑफ साइलेंस को आप परसीव कर पाते हैं। ये अपने आप को आपके सामने रिवील कर देती है अगर आप हेल्दी हो तो। सारा जो योग है, सारे जो आसन है, प्राणायाम है, वो सब किसके लिए है, योगा है, आसन है आपकी बॉडी को फिट करने के लिए, प्राणायाम है आपके माइंड को काम करने के लिए, जिससे कि उस कामनेस में, उस मन की शांति में आप साइलेंस की असलियत को समझ पाओ। अभी हमने ना एक रिसर्च करी है, जो लोग बाय बर्थ डेफ है, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, उनके ऊपर एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूं कि हमने एक रिसर्च करी अलग अलग डेफ स्कूल्स में। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली वहां पर हमारी जो टीम है उसको भेजेंगे और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, उन बच्चों की जो डेफ हैं और उनको ये साउंड आ रही है। हुआ क्या, हमने काफी जगह कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने तो समझने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है। जो उसके ट्रस्टीज हैं या जो टीचर्स हैं उनको खुद ही नहीं पता, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन कई जगह पर, जैसे एक ये है जो तेलंगाना में है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ऑफिशियली हमारे पास में कंफर्मेशन नहीं आई है वहां से, उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं उनको ये आवाज आती है। अपॉन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अबाउट 30 चिल्ड्रन बाय टेलिंग देम टू फोकस इनवर्ड्स, शी गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सम स्टूडेंट्स रोट इमिटेटेड, या तो उन्होंने लिखा या इमिटेट किया म मतलब ऐसे हाथ लगा करके उन्होंने बताया, इशारों से बताया। कभी उनसे किसी ने पूछा नहीं था तो उन्होंने बताया नहीं था। जिसने कभी कोई आवाज सुनी ही नहीं, उसको क्या पता ये क्या है, उसके लिए ये एक वाइब्रेशन है, कोई आवाज नहीं है। जो मैंने भी बोला था, ये एक्चुअल में कोई आवाज नहीं है, आवाज के जैसी है, बट एक वाइब्रेशन है जिसको कोई भी परसीव कर सकता है, जिसके लिए इन कानों की जरूरत नहीं है। कईयों ने लिखा ओ, समझ गए, हाँ, इस तरह से अलग अलग तरह से उन्होंने बताया। हमेशा आती है ये वाली साउंड, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्बली कंफर्म हो गया है। एक और ये है अंबाला से, एक है डेफ स्कूल है, अगेन मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा हां आवाज आती है, बच्चों को उन्हें यह आवाज आती है। मूवमेंट ऑफ लिप्स से वो बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम ओम बोलते हैं या अपने थ्रोट को टच करते हैं अपनी फिंगर्स से, तो बताने की कोशिश करते हैं करके या ऐसा कुछ करके कि हां ऐसी कोई आवाज आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। लोगों को यह भी नहीं पता कि उनसे पूछना कैसे है, अब वक्त उनको समझाएं कैसे, क्या बोले इसको। उन्हें वाइब्रेशंस के बारे में पता होता है, बट उनको यह नहीं पता कि यही आवाज है। समझ पा रहे हो, जिसने कभी आवाज सुनी ही नहीं, उन्हें यह नहीं पता कि यह आवाज है, ये है, लेकिन ये उनके लिए एक वाइब्रेशन है जिसको हम आवाज बोलते हैं।
जो ना एक्चुअल में आवाज है ना कोई वाइब्रेशन है, बस ये है, इसको आप प्रेजेंस बोल सकते हैं। ये प्रेजेंस है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द ट्रूथ। Every form has a hidden sound within itself. When I say a hidden sound, the surface sound of an object will come out when you strike it. If you strike a gong, the sound that you hear, the sound that many of you hate because it rings at 4:45 in the morning, that is the surface sound of that object. There will be a hidden sound to the object. If one knows the hidden sound of an object, or a form rather, once you know the hidden sound of a certain form, you find you also know the form, you find a certain access and a certain intimacy to that form. It is based on this that in this culture we name children like this, feeling the fundamental reverb of a child. Accordingly, a name was given, so that by uttering the name, above all the child constantly hearing the name, will not become a closed life, will become an open possibility, because constantly, every time his name is uttered, something touches him very deep down inside. Not just a way of calling a person, but a way of opening a person just by uttering the name. The naming of a child today has become the whim of the parents, according to the fashion of the times. But till recently, the naming of a child was not in the hands of the parents. Always it was somebody else who knows little better, who decided what the child should be called. Because you are naming a person for social and practical reasons, but that's not all, because the existence is just a complex amalgamation of reverberations. In this complex process of various types of vibrations, you also are one. If you just become just one more, you are like a grain of sand, nothing. In the vastness of this cosmic space, this little body is nothing. But if this hidden sound finds expression,
then this is like a key to everything. This not only opens me, but it also opens the other, whatever I touch with this sound, because this is my sacred key. So, every child, when he's born, the parents were given the freedom to give them some pet name for their emotional satisfaction, but his real name was given by somebody else, who is supposed to know better than the parents. Not always, but that's due to lack of education, that's due to discontinuance of culture. That is due to inefficient transmission from generation to generation. Otherwise, this is done by someone who knows what is the fundamental reverberation of this little child. So they wait for a certain period of time, they observe the child, they make other astrological calculations and arrive that this is the hidden sound of this child. And that is what we should bring out, because it is only in blossoming that, it is only in allowing that to flower and find expression, this child will find full expression to his life. Otherwise, a seed that never sprouted, on the surface many things happened, that's not it. And this is how even the deities are named. The other day someone told me, I sent word for them and they were not available anywhere. I said, where were you? This person said, Sadhguru, I was at DLT. I said, what? DLT? Where were you? No, I was at Dhyanalinga temple. Oh, DLT. So you go to DLT, it's one thing. I was in Dhyanalinga, that's a different thing. The deities are named like this. If you utter the sound Bhairavi, tears should come to you. If you say Dhyanalinga, stillness should come to you. If you say Sadhguru, a wave of ecstasy should pass through you. If you utter the sound with the necessary involvement, because sounds are not just nonsensical garbage. Sound is reverberation. If the reverberation is right, it gives you the needed access. So when the music is on, I want you to listen to the sound, not to the music. You understand what I'm saying? I want you to listen to the sound of it, not the music of it. If you want to have the pleasure of music, you can listen to music. If you want to find deeper access to life, you must listen to the reverberations, not to the lilt. Lilt is surface. Lilt is a small thing, beautiful, but that's it. The reverberations are the very making of life. How this one reverberates right now, it'll determine everything about this one. If this reverberates right, it will not only determine the nature of this one's life, it will determine the nature of everything's life. It will not only determine the nature of the individual, it will also determine how everything else happens around that being. So when the music is on in the darshan, I want you to behold the sound, not the music. Chandrasekhara, Chandrasekhara, Chandrasekhara.
रजताग्रिशृङ्गनिकेतनम् अच्युतानन सायकम् क्षेत्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरभाषये मम किं करिष्यति चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्। अनहद नाद क्या है? अनहत नाद को अनाहत ध्वनि या अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत ध्वनि को साधकों ने एक हाथ से बजने वाली ताली कहा है। अनाहत नाद इस समस्त सृष्टि का आधार है, शून्य का एक रस लयबद्ध संगीत है जिससे यह समस्त सृष्टि गति पाकर आकार ले रही है। इसके इस पार प्रकृति और उस पार परमात्मा है। अनाहत नाद अन जमा आहत यानी जो ध्वनि किसी आहत या चोट की ना होकर अनादि है, शून्य से स्वतः उत्पन्न होती है, उसे अनाहत नाद कहा गया है। अनाहत नाद शून्य का सन्नाटा है। अनाहत नाद एक वो ध्वनि है जो चारों दिशाओं में और इस ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती है। इसे सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता। इसे सुनने के लिए गहन ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। जब साधक ध्यान अवस्था की उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है तब उसे अनाहत नाद सुनाई देने लगता है। यह कोई ध्वनि नहीं है, यह शांति है, यह सन्नाटा है जो अपने आप सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, यह निर्ध्वनि है, यह मौन है, लेकिन यह मौन सुना जा सकता है। इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इस सृष्टि में मौजूद प्रत्येक ध्वनि, जो भी ध्वनि तुम सुनते हो, सब पैदा की गई है और जो ध्वनि पैदा की गई है वह नष्ट होगी। यदि मैं हाथ की ताली बजाता हूं तो ध्वनि पैदा होती है। एक क्षण पहले वह नहीं थी और अब फिर वह नहीं है। वह पैदा हुई और मर गई। निर्मित की गई ध्वनि को आहत नाद कहते हैं, जबकि अनिर्मित ध्वनि को अनाहत नाद कहते हैं। हम ध्वनियों के आदी हैं। प्रत्येक क्षण ध्वनि से भरा है। हमारी खोपड़ी निरंतर ध्वनि से लबालब भरी हुई है। लेकिन जब तुम्हारा मन विदा हो जाता है, अतिक्रमण कर जाता है या नीचे उतर जाता है, जब तुम ध्वनियों के संसार में नहीं होते हो, तब तुम ध्वनियों की अनुपस्थिति को सुन सकते हो। वह अनुपस्थिति निर्ध्वनि है, लेकिन हमने इसे अनाहत नाद कहा है क्योंकि यह सुना जा सकता है, इसलिए इसे नाद कहते हैं। और क्योंकि यह ध्वनि नहीं है, इसलिए इसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद ध्वनि जैसी लगती है, पर वह ध्वनि नहीं है। वह ध्वनि जैसी लगती है क्योंकि तुमने केवल ध्वनि ही जानी है। कोई दूसरी भाषा तुम नहीं जानते, केवल ध्वनियों की भाषा जानती हो। यही कारण है कि वह ध्वनि जैसी लगती है, लेकिन असल में वह मौन है, ध्वनि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करना चाहता है। इसके लिए कई गुरुओं के चक्कर काटता है तथा कहीं कहीं तो ठगा सा महसूस करता है, परंतु उसे परमात्मा का अनुभव प्राप्त नहीं होता। अनहद नाद सुनना परमात्मा का अनुभव करने की एक अच्छी विधि है तथा व्यक्ति को जल्दी सफलता प्राप्त होती है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो बाहर कहीं थोड़ी सी भी आवाज हो, हमारा ध्यान उचट जाता है तथा मन आवाज की ओर भागता है, ध्यान टूट जाता है। साथ ही ध्यान यदि 1 घंटा से ज्यादा लगातार करें तो तंत्रिका तंतुओं में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। इसलिए यदि ज्यादा ध्यान में बैठना है तो 1 घंटे के बाद कुछ इधर उधर घूमने के पश्चात वापस ध्यान में बैठे। इस दुनिया में हमें जितनी भी आवाजें या ध्वनियां सुनाई देती हैं, वो किसी ना किसी चीज के टकराने से पैदा हुई हैं। आप किसी भी आवाज को ले लीजिए, ये आवाजें किसी ना किसी चीज के टकराने या स्पर्श से पैदा हुई हैं। लेकिन अनहद नाद एक ऐसी ध्वनि है जो किसी के टकराने से या किसी के स्पर्श होने से नहीं पैदा होती। इस ध्वनि को विज्ञान की भाषा में साउंड ऑफ सोल कहते हैं, क्योंकि यही ऐसी ध्वनि है जो हमारे पृथ्वी से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में गति करती रहती है। दोस्तों, यह बात जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आज के वैज्ञानिक इस ध्वनि पर अब रिसर्च कर रहे हैं, जबकि हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में ही इस ध्वनि का जिक्र कर दिया गया था। सुबह जब से हम उठते हैं,
हमारे सोने तक हमें कुछ ना कुछ आवाजें सुनाई देती रहती हैं, चाहे वो किसी मशीन की आवाज हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंगों की आवाज ही क्यों ना हो। इसके अलावा जब हम सो रहे होते हैं तब भी अनेक आवाजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, यानी 24 घंटे हमें कुछ ना कुछ आवाजें सुनाई देती रहती हैं। अगर इन सब ध्वनियों को रोक दिया जाए तो हमें एक ऐसी ध्वनि सुनाई देगी जो इन सब ध्वनियों से परे है, जो किसी चीज के टकराने से भी पैदा नहीं हो रही है। हमें जितनी भी आवाजें पूरे दिन सुनाई देती हैं, हम इन आवाजों को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हम इन सब ध्वनियों को बंद कर दें और एक खाली कमरे में बैठ जाएं तो हमें नाद की ध्वनि सुनाई देने लगेगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि नाद की ध्वनि फिर भी आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार हमेशा चलते रहते हैं। इसीलिए यदि हम बाहरी ध्वनियों को बंद कर दें तो हमारा दिमाग खुद ब खुद आवाजें निकालने लगता है। हम हमेशा किसी न किसी विचार में उलझे रहते हैं। विचार से उत्पन्न हो रही ध्वनि हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है। यदि आप अनाहत नाद की ध्वनि को सुनना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। जब कोई साधक ध्यान की अवस्था में होता है तभी यह अनाहत नाद की ध्वनि उसे सुनाई पड़ सकती है। अनाहत नाद की ध्वनि हमारे आसपास की ध्वनियों से परे है, वह असीम है। देखिए, अब बहुत से लोगों के यह प्रश्न हो सकते हैं कि सर, मैं मेडिटेशन यानी ध्यान तो करता हूं, लेकिन मुझे अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ऐसा क्यों है? देखिए, ध्यान के शुरुआती समय में एक साधक को उसके आसपास की सभी ध्वनियां सुनाई देती हैं, क्योंकि वह विचारों पर कंट्रोल करना चाहता है। और जब विचारों पर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपके अंदर तरह तरह के विचार पैदा होने लगेंगे और यह विचारों की ध्वनि आपको अनाहत नाद को सुनने नहीं देगी। पर यदि आप कई दिनों तक मेडिटेशन करते हैं तो आपको इन आवाजों के अतिरिक्त भी एक अलग ध्वनि सुनाई देने लगेगी। कुछ समय और जाने के बाद जब आपका ध्यान साधने लगेगा तो यह अनाहत नाद की ध्वनि आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। जैसे जैसे यह ध्वनि आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगी, आसपास की आवाजें आपको सुनाई देना बंद होने लगेंगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपको ध्यान में सिर्फ अनाहत नाद की ध्वनि ही सुनाई देगी। इसलिए इस ध्वनि को अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत नाद ही वह ध्वनि है जो इंसान को शून्य की ओर ले जाती है। नाद की ध्वनि शुरुआती समय में बहुत धीरे धीरे सुनाई देती है, लेकिन कुछ समय बाद यह आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। जब एक साधक शून्य की ओर गति करता है तो यह अनाहत नाद की ध्वनि उसे बहुत ही स्पष्ट सुनाई देने लगती है और यह ध्वनि धीरे धीरे ओम की ध्वनि में बदल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ओम की ध्वनि हमारे ब्रह्मांड में हमेशा गति करती रहती है। दोस्तों, जिस इंसान को नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक नकारात्मकता और कई बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। अनाहत नाद की ध्वनि जब सुनाई देने लगती है तो एक साधक अपने विचारों पर काबू पाने लगता है। उसके अंदर विचारों पर काबू करने की और प्रबल शक्ति उत्पन्न होने लगती है। अनाहत नाद की ध्वनि इंसान की चेतना को एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जिस स्तर पर पहुंचने के बाद एक इंसान को परम आनंद की अनुभूति होती है और वह परम आनंद की स्थिति की वजह से मनुष्य की इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। जब एक साधक को नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है तो वह अपने नेगेटिव विचारों पर काबू पाकर अपने अंदर बहुत से बदलाव कर सकता है, अपने आप पर पूरी तरह से काबू पा लेता है। जब मनुष्य की चेतना उस स्तर पर पहुंच जाती है तो मनुष्य असीम ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस करने लगता है, साथ ही साथ अपने वजूद को जानने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अनाहत नाद उस असीम ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस करने की एक ध्वनि है। आज मंजू भुवनेश्वर से पूछती हैं, अनहद नाद किसे कहते हैं, मुझे बताएं। नाद का अर्थ होता है ध्वनि और अनहद का अर्थ हुआ जिस ध्वनि का कभी अंत ना होता हो। अब अनहद नाद को समझने के लिए ऐसा जानिए कि ये शब्द से मैं कितना भी कह लूं वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये अंतर मन की
टिकाव, मन का निर्विकल्प होना, मन का निर्विचार होना, और उस निर्विचारिता के बाद ये जो शून्य की ध्वनि होगी, हम इसी को अनहद नाद कह सकेंगे। ऐसे नाद अनुसंधान साधनाएं होती हैं जहां हम मन को इतना चुप्पी में ले जाते हैं और फिर उस चुप्पी में उस इनर साइलेंस को, वो अंतर मौन को सुनते हुए पर एक बहुत सूक्ष्म तल पर अंतर ध्वनियां जो हो रही हैं उसको साधक श्रवण करता है। और फिर श्रवण करते करते, इन मंजिलों को पार करते करते फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां शब्द और नाद और ध्वनि यूं कुछ नहीं है, पर फिर कुछ है। उसी को रहस्यवादी संतों ने अनहद नाद कहा है। रूहानियत और दुनियादारी की दृष्टि से सभी साथ संगत के मन में शब्द और धुन को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे, तो देखिए इस सवाल पर बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी राजस्वामी जी, राजस्वामी बेटा। बाबा जी, मैं बाबा सावन सिंह साहब ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेटा शब्द पहला ना धुन नूं कहंदे है, किसी लफ्ज़ां नूं नहीं कहंदे। हाँ जी, आपां धुन नूं सुनन दी कोशिश करनी है। धुन सारियां विच है, भावें नाम लिता होवे ना नाम लिता होवे, उस धुन तो बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकदा। ठीक है। जिस दिन मालिक ने अपनी मौज विच उस धुन नूं अपने विचों कढ लिया ना, साडी जिंदगी खत्म हो जाऊगी। सिमरन आपां इस करके करते हैं कि साडे मन विच इकाग्रता नहीं गी। सिमरन का मतलब है कि मन विच इकाग्रता आवे कि असी अपने आप नूं धुन दे नाल जोड़ सकीए। नामो उपजे नामो बिणसे, ये सारी उत्पत्ति उस शब्द के जरिए पैदा हुई है और इस तो बगैर इत्थे किसी चीज़ की हस्ती नहीं कायम रह सकती। इस करके वो शब्द वो ताकत है, कोई लफ्ज़ नहीं गा। हुण तुसीं देखो जिन्ने भी अपने विच ताकत है, जे वो ताकत दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाए तो जिंदगी का सामना करना आसान हो जाऊगा कि नहीं हो जाऊगा। सो ये वो क्रिएटिव पावर है, ये जिहड़ी धुन है ना, जिन्हें सृष्टि नूं बनाया है, वो कित्थे है? वो साडे अंदर है। तो जे आपां भजन सिमरन करके अपने आप नूं उहदे नाल जोड़ लीए, साडी अंदरों ताकत वध जूगी, साडा भी दुनिया का सामना करना आसान हो जाऊगा। तो पापा जी दूसरा सवाल मेरा यही है जी, क्या ध्यान की गहराई में उतरने के बाद कोई अनहद नाद सुनाई देता है? ध्यान दो, जब आपका विचार शांत होने लगता है और जब थोड़ी देर के लिए कोई विचार नहीं रहता, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोई चीज़ बाहर से सुनाई नहीं देगी या अंदर की चीज़ नहीं सुनाई देगी। बहुत सारी चीज़ बाहर की भी आती है, पर आप शांति का अनुभव इतना करते हैं, आप इतने शांत हो गए होते हैं, तो उस समय आपको अपने मस्तिष्क की आवाज़ सुनाई देती है। वो मस्तिष्क की आवाज़ जो एक मशीन है, मस्तिष्क तो आपका मशीन है, वो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है और उसी को हम अनहद नाद कहते हैं। अनहद का मतलब जहाँ पे कोई ठोकर नहीं लगी है, जो भी नाद निकलती है वो ठोकर लगने के बाद निकलती है। जब आप इसको मारते हैं तभी आवाज़ निकलेगी, बिना मारे आवाज़ निकल रही है। एक्चुअली उसमें आप थॉट से कोई चोट नहीं मार रहे हैं जो आवाज़ निकले, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका थॉट्स है ही नहीं है, तो आप अपने मस्तिष्क में, चूँकि आप तो अपने मस्तिष्क के ही अंदर बैठे हैं, तो आपको मस्तिष्क की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसी को अनहद नाद कहते हैं। ये बात हम समझ लें। दूसरा, क्या ध्यान की गहराई में जाने से अपनी आत्मा को अनुभव पूर्ण रूप से किया जा सकता है? कोई ध्यान की गहराई में या मस्तिष्क में घुसने से आत्मा कोई अंदर बैठी नहीं है। जो ध्यान कर रहा है उसको अपना अनुभव ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि थॉट से
वो घिरा हुआ होता है तो अपने को अनुभव नहीं कर पाता। जब थॉट्स खत्म हो गए, जब थॉट लेस हो गए या खत्म हो गए, तो वो अपने आप को ज्यादा अनुभव करने लगता है। अलग से कोई आत्मा का अनुभव नहीं करता। वो आत्मा कोई अलग से नहीं बैठी पड़ी है वहां पे, वो अपने आप को, स्वयं की आत्मा, स्वयं ही तो आत्मा है, मैं स्वयं ही तो आत्मा हूं, तो स्वयं ही तो बोल रहा हूं मैं मुंह से अपने, तो मैं ही आत्मा हूं। तो जब सारी इंद्रियां बंद हो गई, सारे थॉट प्रोसेस बंद हो गए, तो मैं ही अकेला बचा, तो मैं अपने आप को अनुभव कर लेता हूं।